مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور بارگاہ مسیح میں آپ کا خیر مقدم ہو۔ کلام مقدس میں آج ہم دیکھیں گے ہم انسان مصیبت میں کیسے پھنس جاتے ہیں، مصیبت کیسے آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مصیبت آنے کا طریقہ کیا ہے اور مصیبت بھگانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم انسان زیادہ تر مشکلوں میں پھنسے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکل، ذمہ داریاں ہم سب ذمہ دار انسانوں پر ہوتی ہے۔ ذمہ داری کو صرف ذمہ دار انسان ہی سمجھتا ہے، لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ مصیبت آتی کیسے ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے ہم پاسٹر کو بلائیں گے، ان کی شکر گزاری کریں گے، گھر کے اندر عبادت رکھیں گے اور پاسٹر صاحب کو انڈا بریڈ بھی کھلائیں گے، اچھی دیکھ بھال کریں گے، تب بھی مصیبت نہ ٹلی تو ان کو بڑے پائے کھلائیں گے، اور یہ اپائے بڑے پائے سے بھی نہ جائیں گے تو پھر انسان کیا کرے۔ ہم بہت سی شکر گزاریاں کرواتے ہیں اور بہت سارے خادمین کو جس پر ہمارا اعتبار ہو یا ایمان ہو، جیسے ایک الگ الگ ڈاکٹر پر انسان کا ایمان ہوتا ہے نا، ہم اس کے پاس جائیں گے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ ہم انسانوں نے بھی یہی رویہ بنا لیا ہے، اور اس رویے کو ہم تمام مسیحی خاندان یا کوئی بھی لگا لیں اسی طرح چلتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پاسٹر صاحب کو انڈا بریڈ کھلانے سے یہ مصیبت نہیں جائے گی۔ آپ کہیں گے ہم نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کھایا، بہت کچھ بنایا، گھر گھر میں عبادتیں کروائیں، اس پاسٹر کو بلایا جس کا بڑا نام ہے، چھوٹے پاسٹر کو بلایا جس کا کوئی نام نہیں ہے، تو مصیبت تو گئی نہیں۔ یہ مصیبت آئی کیسے؟ آپ کہیں گے یہ مصیبت آئی کیسے؟ ہم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، ہم تو ایسے ہے ہی نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمارا خاندان تو بڑے نام والا ہے، ہم تو بڑے نام والے ہیں، ہمارے پاس روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہمارے بچے بھی بہت قابل ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مصیبت آئی کیسے؟ تو آئیں آج ہم سیکھتے ہیں کہ یہ مصیبت آئی کیسے اور اب اس کو بھگائے کیسے۔ ہاللیلویا۔ سو یرمیہ اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیات، یرمیہ اس کا 4 باب اور اس کی 18 آیات، جی بیٹا پڑھیے اور دیکھیں گے آج یہ مصیبت آئی کیسے۔ بڑا کچھ کیا، بڑی عبادتیں کروائیں، شکر گزاری کروائی، روزہ رکھا، عبادت کی، پر مصیبت آئی کیسے؟ سنیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے۔ تیرے چال اور تیرے کاموں سے اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے۔ یہ مصیبت تجھ پر جس کو تجھے پتہ ہی نہیں، تیرے چال اور چلن سے اور تیرے غلط کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی۔ آپ یہ تو پاسٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہی نہیں، یہ تو حوالہ ہمیں نکال کے سنایا ہی نہیں، اس کا تو ہمیں علم ہی نہیں۔ ہم ایسے شکر گزاریاں کروا رہے تھے، ایسے دعائیں کرا رہے تھے، ہمیں تو ضرورت تھی سب سے پہلے اپنے چال اور چلن کو ٹھیک کرنے کی۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جب زمین پر انسان اپنا چال چلن بگاڑ لیتا ہے تو پھر آسمان سے خدا بلائیں نازل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب یہ آیات کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ مصیبت تیرے چال اور تیرے کاموں سے آئی ہے۔ ہم اپنے کاموں پر غور نہیں کرتے، ہم اپنے چال چلن پر غور نہیں کرتے، پر مصیبت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مصیبت آئی کس طرح، آئی کس طرح، اب اس کو بھگائیں کیسے؟ اور ایک بات، جب آپ اپنی مصیبت سے واقف ہو جائیں کہ میرے غلط کاموں سے، میری غلط باتوں سے، میرے غلط رویے سے
یہ مصیبت آئی تو اسی وقت اپنے خدا کے آگے منت کرنا شروع کر. ہاللیلویا. کیونکہ ہمیں منت کو کر کے مصیبت کو بھگانا ہے. کلام مقدس کے اندر اس بات کا خلاصہ ہو چکا ہے کہ مصیبت انسان کے غلط چال چلن. اچھا چال چلن بھی ہوتا ہے, اچھے لوگ بھی چلتے ہیں, لوگوں کے اندر اچھائی بھی پائی جاتی ہے, لوگوں کے اندر بڑی محبت بھی پائی جاتی ہے, لوگوں کے اندر بڑی دلیری بھی پائی جاتی ہے, لوگوں کے اندر بڑا خلوص, اطمینان اور محبت بھی اور تحمل بھی پایا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف خاتموں پر رہتے ہیں, شکر گزاریوں پر رہتے ہیں, لیکن اپنے چال چلن پر غور نہیں کرتے. انہوں نے چلیاں کرتے, کوئی کچھ نہیں خداوند آپ سے مانگ رہا. خدا کبھی آپ سے انڈا بریڈ نہیں مانگے گا, خدا کبھی آپ سے بڑی بڑی شکر گزاریاں نہیں مانگے گا. لیکن فقط ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کرنا ہے. اپنے چال چلن کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کرنا ہے, تاکہ ہم اس مصیبت کو بھگا سکیں. اور اگرچہ مصیبت کی سمجھ آ جائے کہ یہ مصیبت تو اس کی وجہ سے آئی ہے, یہ مصیبت تو میرے بیٹے کی وجہ سے آئی ہے, یہ مصیبت تو میرے شوہر کی وجہ سے آئی ہے, یہ مصیبت تو میرے ماں باپ یا بہن بھائی یا خاندان کی طرف سے آئی ہے, تو فوراً اپنے خدا کی مدد کریں. ہاللیلویا. آئیے ہم پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 24 آیات پر غور کریں گے. یہ خدا کا خادم ہے, خدا کا خادم ایلی ہیکل کے اندر رہتا ہے, خدا کی بارگاہ کے اندر رہتا ہے. اور جب اس بات کا اسے علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں سے بات کی. بیٹے بدچلن ہیں, بیٹے نافرمان ہیں, بیٹے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں, بیٹے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں, بیٹے اپنے باپ کے نہیں بلکہ اپنے خدا کے بھی نافرمان ہیں. اور ایلی نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور اپنے بیٹوں کو بلوا کر ان کو نصیحت کی. اور سنیے غور سے, پہلا سیموئیل 2 باب 24 آیات. جی کیا لکھا ہے؟ نہیں میرے بیٹوں, نہیں میرے بیٹوں. ایک باپ اپنے بیٹوں سے منت کر رہا ہے, ایک باپ اپنے بیٹوں سے درخواست کر رہا ہے, ایک باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے اور کہتا ہے, ایلی ہے خدا کا خادم ہے, اور کہتا ہے نہیں اے میرے بیٹوں, نہیں ہے میرے بیٹوں, یہ اچھی بات نہیں, یہ اچھی بات. ارے میرے بیٹوں یہ اچھی, اپنے بیٹوں کو بلا رہا ہے کیونکہ وہ اسرائیل کی بچیوں سے نافرمانی کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بلا کر, بیٹوں کو بلا کر ایک تاکید کر رہا ہے, کچھ انہیں سمجھا رہا ہے, ان کو نصیحت کر رہا ہے. نہیں میرے بیٹوں یہ بات اچھی نہیں ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. خدا کا خادم ہے ایلی ہے, اور ایلی نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور کہا نہیں اے میرے بیٹوں یہ اچھی بات نہیں, یہ اچھا کام نہیں جو تم کر رہے ہو. جی کیا کر رہے ہیں؟ جو میں سنتا ہوں تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کرواتے ہو. کیوں خدا کے لوگوں سے برے کام کرواتے ہو؟ تمہارا چال چلن خود تو اچھا نہیں ہے, تم دوسروں کے بھی چال چلن کیوں بگاڑتے ہو؟ اے میرے بیٹوں, اپنے سکے بیٹوں سے بات کر رہا ہے ایلی, اے میرے بیٹوں یہ بات اچھی نہیں. جی اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے, اگر ایک آدمی کسی دوسرے انسان کا گناہ کرے اسے تو خدا معاف کرے گا, لیکن اگر وہی آدمی خدا کا گناہ کرے تو پھر کون معاف کرے گا؟ ہاللیلویا. پھر کون معاف کرے گا, کون شفایت کرے گا؟ یہ باپ اپنے بیٹوں کو تعلیم دے رہا ہے, نہیں ہے میرے بیٹوں یہ بات اچھی نہیں. اس سے پہلے کہ خدا کا قہر نازل ہو, اس سے پہلے کہ تباہی آئے, تمہارا چال چلن بگڑ گیا ہے, تمہارے چال چلن ٹھیک نہیں ہے. نہیں میرے بیٹوں ایسا کام نہ کرو. انسان کا گناہ کرے گا تو خدا معاف کرے گا, اگر کوئی خدا ہی کا گناہ کرے گا تو پھر کون شفایت کرے گا؟ ہاللیلویا. جے ڈائریکٹ اسی خدا دے جا کے گناہ کر لیے تے پیچھے شفارت کرنے والا کون, شفایت کرنے والا کون؟ ایسی بات کہی ایلی نے. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. وہ اپنا چال چلن اور بگاڑنا شروع ہو گئے. انہوں نے اپنے باپ کی نہ مانی. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن سیموئیل نبی چھوٹی سی عمر میں, جیسے یہ سلاس ہے اس عمر کا تھا, اور خدا کے عہد کے صندوق خیمہ کے اندر جہاں پر کسی کو اجازت نہیں, وہاں پر کون سو رہا ہے؟ خدا کا بندہ سیموئیل نبی.
छोटा सा है अभी और क्या सो रहा है, और खुदा ने आकर सैमुएल से बात की। हालेलुया। और खुदा ने कहा सैमुएल। सैमुएल उठा और दौड़कर एली के पास गया और एली से कहता है ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ। उसने कहा नहीं मेरे बेटा जा। एली के पास गया, नहीं मेरे बेटे जा, सो जा जाके। फिर आवाज आई, सैमुएल फिर जाके ऐद के संदूक के पास लेट गया और फिर आवाज आई सैमुएल। सैमुएल फिर भागा और फिर एली के पास गया और कहते ए मेरे आका मैं हाजिर हूँ। छोटा बच्चा 10 साल का। एली ने कहा नहीं मेरे बेटा जा, सो जा, आराम कर। फिर जाके सैमुएल लेट गया। फिर तीसरी बार आवाज आई सैमुएल, और सैमुएल फिर उठा और भागा और एली के पास गया और एली समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये जिंदा खुदा की आवाज है। हालेलुया। एली समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये तो कादिर मुतलिक की आवाज है। ए सैमुएल, अब आवाज आए तो कहना ए खुदा मैं हाजिर हूं। और जब आवाज आई तो सैमुएल ने कहा ए खुदा मैं हाजिर हूं। फिर खुदा ने सैमुएल को रत्ती रत्ती हाल बता दिया। एक छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चे को खुदा ने अपना भेद बता दिया, खुदा ने अपना राज बता दिया। जिससे वो प्यार करता है, हालेलुया, जिससे वो प्यार करता है उसको किसी ने खरीदा थोड़ा है, बल्कि उसने हमें खून दे के खरीदा है। अब सैमुएल के पास वो सारी बातें आ चुकी हैं। छोटा नन्हा बच्चा है, खुदा ने रत्ती रत्ती हाल बता दिया। अब देख मैं एली के साथ क्या करूंगा और एली के बच्चों के साथ क्या करूंगा, क्योंकि मैंने उनको मना किया पर उन्होंने अपना चाल चलन दुरुस्त ना किया। अब एली को जाके बता कि अब उनका मैं क्या हाल करूंगा। अब इस बात को छोटा बच्चा नन्हा सहम गया, डर गया कि वो मेरा उस्ताद, वो खुदा का खादिम, वो काहिन, वो एली, मैं कैसे बात करूं। वो डर गया। सुबह होते ही एली सैमुएल के पास आया और सैमुएल से कहने लगा सैमुएल रात को तेरी और खुदा की क्या बात हुई। एली को, खुदा के खादिम को पता है कि खुदा ने कुछ ना कुछ जरूर कहा है, जो मुझे नहीं कहा उसको जरूर कहा है। हालेलुया। खुदा ने सैमुएल से कहा बता तेरी और खुदा की क्या बात हुई। तो सैमुएल डरता, मैं कैसे बताऊं कि तू तबाह हो जाएगा, मैं कैसे बताऊं कि तू फना हो जाएगा, मैं कैसे बताऊं कि तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं कैसे बताऊं कि तेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं कैसे बताऊं कि दुश्मन के हाथ से तेरे बच्चे कत्ल हो जाएंगे, मैं कैसे बताऊं। तो क्या लिखा है कि एली ने, आप 3 बार पढ़ सकते पहला सैमुएल का। तो एली ने कहा अगर तू नहीं बताएगा तो देख मैं तेरा हाल क्या करता, मैं तेरी मिन्नत करता हूं। वो बड़ा था। फिर सैमुएल ने रत्ती रत्ती हाल बता दिया कि खुदा ने ये कहा है। तब कलाम मुकद्दस के अंदर पहला सैमुएल 3 बार उसकी 18 आयत के अंदर एली ने फिर क्या कहा, जरा गौर से सुनिए उसको क्या कहना चाहिए था। तो उसने क्या कहा है, तो वो खुदा का खादिम था। जी बेटा पढ़िए। तब उसने पूछा वो क्या बात है तेरी और खुदा की हुई। पढ़े आप पढ़ते जाए। जो खुदावन ने तुझसे कही है, जो खुदा ने तुझसे कही है। छोटे बच्चे से पूछ रहा है एली जी। मैं तेरी मिन्नत करता। अगर आप यही मिन्नत खुदा के आगे कर लें तो ज्यादा अच्छा नहीं। एक बच्चे के आगे मिन्नत करने से बेहतर है कि आप जिंदा खुदा की मिन्नत कर लें। हालेलुया। जी मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे मुझसे मत छुपा, पोशीदा ना रख। जी अगर तो कुछ भी उन बातों में से तो उसने कही तू छुपाएगा, छुपाए तो खुदा तुझसे ऐसा ही करे। तो खुदा तेरे साथ बड़ा बुरा करेगा। बता कि तुझे खुदा ने तेरे साथ क्या बात की। सैमुएल ने रत्ती रत्ती हाल बता दिया। आगे एली ने क्या कहा जरा सुनिए जी। उसने कहा वो खुदावंद है, वो खुदा है जो वो भला जाने सो करे। वो खुदा है जो चाहता है वो खुदा है जो चाहता है वो करे। जब कभी आप पर भी ऐसी मुश्किल आती है, जब कभी इंसान भी किसी भी हलाकत के अंदर आ जाता है, तो हम बैठे बैठे कहते हैं वो खुदा है जो चाहे करे। ऐसा क्यों कहते हैं? खुदा तो फिर करेगा, उसने तो ठान लिया है, वो तो अब अपना इरादा बदलने वाला नहीं। आपने ये क्यों कह दिया कि खुदा जो चाहे करेगा? भी आप ऐसे कहते हो ना। चलो नहीं कमला बदल मैं ना रबे खुदा ने जो मर्जी, तो नहीं बच्चा होता मैं कोई गल नहीं, खुदा की मर्जी। नहीं मोटरसाइकिल मिल रही तो खुदा की मर्जी। शायद खुदा ट्रेन देना चाहता। ऐसा क्यों भाई?
खुदा पे कुछ छोड़ दिया। आपकी अपनी मर्जी कुछ नहीं, आपकी अपनी कोई राय नहीं है, आपकी अपनी कोई मिन्नत नहीं है। एक बच्चे की तुम मिन्नत कर रहे हो, इससे बेहतर है कि तुम अपने जिंदा खुदा की मिन्नत करो और अपने खुदा के ख्यालात को बदल दो। सावन की शुक्रगुजारी के लिए छोटी ताली के लिए बड़ी ताली। बच्चे की मिन्नत की है, खुदा की मिन्नत नहीं की। कहता अच्छा ये बात है, वो मेरा घर बर्बाद कर देगा, मेरे बच्चों को मार देगा। हालांकि खादिम है, पूरी जिंदगी गुजर गई है खुदा के साथ, और कहता है कोई बात नहीं, चलो जो खुदा की मर्जी है करे। तो फिर तो खुदा ने ठान दिया है, फिर तो वो करेगा, क्योंकि तुम अगर उसकी मिन्नत करोगे तो खुदा अपना इरादा बदलेगा। तुमने मिन्नत नहीं की, खुदा ने अपना इरादा नहीं बदला। मूसा ने मिन्नत की है, मूसा ने मिन्नत की है। आसमान पर खुदा और मूसा बात कर रहे थे। जमीन पर जब लोग मिस्र से आए, मिस्र से निकलते ही देखा मूसा नहीं है, मर गया होगा, शायद कहीं गायब हो गया है। अब क्या करें, अब क्या करें? ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर अपने सोने को मिलाकर एक देवता बनाते हैं, एक खुदा बनाते हैं और उस खुदा की इबादत करते हैं। बहुत सारे लोग जब खुदा के हुजूर से नहीं मिलता तो अपना तरीका बदल लेते हैं, अपना रुख बदल लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपना खुदा बदल लेते हैं। हालेलुया, समझ आ रही है? मैं भी बोली है, आ रही है? कितना मजा आ रहा है। ऐसी ही बात हो रही थी जब खुदा और मूसा बात कर रहे थे। खुदा ने मूसा ने तो ना सुना, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इंसान नहीं सुन सकता, पर वो तो कादिर मुतलक है, वो तो हमारी सुनता है 24 घंटे आसमान पर बैठ के। हालेलुया। हम क्या क्या मांग रहे हैं जमीन पर। जब जमीन पर लोगों का चाल चलन बिगड़ गया, लोगों ने अपने खुदा को भूल गए, गंदा चाल चलन कर लिया, बुरा चाल चलन कर लिया, औरतें मर्द नाचना शुरू हो गए, वो देवता, वो बछड़ा बनाकर, सोने का बछड़ा बनाकर, एक बुत बनाकर वो इबादत करने लगे। जब उन्होंने अपना तरीका बिगाड़ दिया तो आसमान पर खुदा सुन रहा था। उसने कहा मूसा मुझे कुछ आवाज आती है, मूसा मुझे कुछ शोर आ रहा है। उसने कहा नहीं मेरे आका। उसने कहा देख, नीचे इंसान ने अपना रवैया बिगाड़ दिया। हालेलुया। देख, ये खुरूज की किताब और उसके 32 बाब के अंदर 7 से शुरू होगा, 14 आयत तक खत्म होगा। ये कहानी बड़ी जबरदस्त है। खुरूज 32 बाब के अंदर पढ़िएगा, नहीं सुनिएगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा देख, नीचे लोगों ने अपना रवैया बिगाड़ लिया है, और देख उनका चाल चलन बिगड़ गया है, और वो मुझ जिंदा खुदा को भूलकर एक देवता को मानना शुरू हो गए। मैं करने को हूं कि मैं आसमान से अब कहर नाज़िल करूंगा मूसा, और ये कहर बनी इस्राएल के लोगों पर जाएगा, और अभी इसी वक्त ये अपने देवता के साथ निस्तो नाबूद हो जाएंगे। और वहां पर लिखा है 11 आयत के अंदर, जी क्या लिखा है जरा पढ़िए, कि मूसा को जब ये बात चली पता, जो इतनी मेहनत से खुदा ने उससे काम करवाया, जो जनाबे मूसा इतनी मेहनत से खुदा के लोगों को लेकर आया, जब ये बात मूसा को पता चली कि खुदा अपना कहर नाज़िल करने वाला है, तो मूसा ने क्या किया? आज हमको भी वैसा करना है। हालेलुया। पानी पे नहीं चला कि हम क्या कैसे चलेंगे, हम पानी पे हम नहीं चल सकते। आग में से नहीं निकला तो हम आग में से कैसे निकलेंगे? कोलों पे नहीं चला, आगे हम कोलों पे नहीं चलेंगे। मूसा ने एक बड़ा आसान काम किया जो आज आपको भी करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए बेटा इस 11 आयत के अंदर, 32 बाब 11 आयत खरूज। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, जी ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब, क्यों खुदावंद तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है? ऐसा मत कर। खुदा मिन्नत कर रहा है। एली ने मिन्नत नहीं की। एली कहना चलो ठीक है जो खुदा मंजूर, हाँ कहता चलो फिर जो खुदा मंजूर थे, फिर खुदा ने तो जो ठानिया करेगा, चलो फिर जो खुदा मंजूर थे फिर मंजूर ही सही। लेकिन मूसा यहाँ पर कह रहे नहीं है खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। जी क्या कह रहा जरा सुनिए। जी मूसा ने मिन्नत करके, जिनको तू कुव्वते अजीम, जिन्हें तू कुव्वते असीम और दस्ते कभी हाथों से, कुव्वते असीम और दस्ते कभी हाथों से, एक शान से, एक आन से, एक बात से, और अपने जोरवर हाथों से जिस कौम को निकाल के लाया है
खुदावंद उस कौम को मत मार, उस कौम को मत मारना खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। अगर तू ये बात ना माने तो मेरा नाम किताबे हया से काट दे। मूसा कह रहा है हम बंदे वास्ते जिन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया है, जो जमीन पर बिगड़ चुके हैं, जो जिंदा खुदा को भूलकर गैर मबूदों के पीछे भाग रहे हैं, खुदा कहता है मेरा गज़ब और कहर उन पर नाज़िल होगा। ठान लिया है मैंने मूसा, नहीं खुदा मैं मिन्नत करता हूँ, नहीं खुदा मैं आजिज़ी करता हूँ, नहीं खुदा अगर तू बाज ना आया। खुदा को कहे, कौन कह रहा है? कहने के लिए भी जुर्रत होनी चाहिए। हालेलुया। अगर तू बाज ना आया खुदा तो मेरा नाम किताबे हया से मिटा दे। खुदा ने कहा क्यों मैं मिटाऊं तेरा नाम? गलती वो करे और सजा मैं तुझे दूं, तो बस खुदा अपने बुराई के ख्यालात को छोड़ दे। खुदा को कह रहा है कि अपने बुरे ख्याल को छोड़ दे। ऐसा ना हो लोग ये कहे कि खुदा इनको मारने के लिए निकाल के लेकर गया, तो कुव्वत अजीम और दस्ते कभी हाथों से निकाल के लाया है। खुदा ऐसा मत करना, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ। आपने ऐसा करना है, पानी पे नहीं चला, आग में नहीं चला, कोलों में नहीं चला, हम नहीं चलेंगे। उसने मिन्नत की है, आपको भी मिन्नत करनी है। हालेलुया। और फिर बाद में जब ये बात सुन ली खुदा ने, इस बात को मान लिया खुदा ने, अब चुप करके खुदा मूसा का बोल दिया। उसका खादिम है भाई, मूसा अजीम खादिम है खुदा का, अब बात तो माननी पड़ेगी। कौन कह रहा है? ये यहोवा कह रहा है, खुदा कह रहा है। अब क्या करें? मूसा ने ये क्या कह दिया? मूसा ने कह दिया कि अगर तू इनको माफ नहीं करेगा, इन पर अपना कहर का बुराई का ख्याल नहीं हटाएगा, तो मेरा नाम काट दे। अब मूसा मैं क्या करूं? अब इनको मारूं तो तेरा नाम निकालूं? अब मैं क्या करूं? और देखिए इसी चैप्टर के अंदर, इसकी 14 आयत के अंदर अब खुदा बोलता है जी, पढ़े 14 आयत जी। तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया। तब खुदा ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मूसा ने मिन्नत की है। मुसीबत आई तो है, पर मुसीबत को भगाना भी है। तो कैसे भगाना है? अंडा ब्रेड खिलाना है, हाँ, जो शुक्रगुजारियां करवानी है, किया अपने चाल चलन पर गौर करना। क्या करना है भाई? मुसीबत कैसे भागी? मुसीबत आई तो आपके चाल चलन के वसीला से, अब जाएगी कैसे? मिन्नत करके, खुदा माफ कर दीजिए, खुदा ये काम हो गया, खुदा मुझे पता चल चुका है इस बात का, उस बात का, हर तरह की हलाकत का। खुदा इससे पहले कि तू मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरी जिंदगी को तबाह कर दे, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माफ कर दे। एली ने नहीं की मिन्नत, एली ने मिन्नत नहीं की, जो चाहे खुदा करे। भाई क्यों करे? हमें मिन्नत, अगर एली मिन्नत कर लेता तो उसके बेटे कत्ल ना होते, अगर एली मिन्नत कर लेता तो उसकी गर्दन ना टूटती। आप पढ़ सकते पूरा चैप्टर, पहला चैप्टर। एली की खातम है अजीम, हन्ना को बरकत देने वाला, जा तेरी मुराद पूरी हुई। लेकिन इंसान भटक जाता है, जब खुदा से कनेक्शन टूट जाता है तो फिर इंसान किसी का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एली एक खुदा का खादम होते हुए भी कहते चलो फिर ठीक है, जो खुदा, तुम खुदा को मना सकते हो, तुम खुदा के ख्यालात को बदल सकते हो, तुम में ये ताकत होनी चाहिए, तुम में ये पावर होनी चाहिए कि तुम अपने खुदा के ख्यालात को बदलो। हालेलुया। आज बदली अपने खुदा से बात करके, क्योंकि वो आपके तमाम चाल चलन, उठना बैठना सब जानता है। अगर हम देखें ज़बूर 139, ज़बूर 139 और उसके अंदर क्या लिखा है, पढ़ेंगे ज़बूर 139। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, मैंने निकाली थी। हाँ, लिखा है, आए खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है और तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता। हालेलुया। आपका चलना फिरना, आपका उठना बैठना, आपका बोलना, आपका देखना, आपके घर के अंदर आपका रवैया, आपका चाल चलन, आपके मोहल्ले में आपका तमाम रहना सहना, खुदा सब जानता है। हालेलुया। ये मत समझिए मुझे कोई दुनिया का बंदा नहीं जानता, मैं क्या हूँ, मैं गरीब सा हूँ, मुझे कौन जानता था?
आपको बनाने वाला आपको जानता है। Praise the Lord। वो आपका उठना, वो आपका बैठना, वो आपका चलना, वो आपका फिरना, यहाँ तक कि जो कुछ तुम ख्वाब में देखते हो खुदा वो भी जानता है। यहाँ पर क्या लिखा है? तू मेरे रास्ते की और मेरे ख्वाब की छानबीन करता है और मेरी सब रफ्शों से वाकिफ है, और कोई ऐसी बात नहीं जो खुदावंद मेरी जुबान पर और तुझे पता ना। हालेलुया। वो तो मुंह से आने से पहले भी जानता है। और लिखा क्या है कि तू मेरी रफ्शों से वाकिफ है, वो आपके चाल चलन से वाकिफ है। अपना ऐसा चाल चलन बनाइए। कुर्सियों का पहला बाप और 10 आयत के अंदर लिखा है तुम्हारा ऐसा चाल और चलन हो जो तुम्हारे मसीह को पसंद आए। हालेलुया। तुम्हारा ऐसा चाल और चलन हो जो तुम्हारे मसीह को और तुम्हें वो नेक कामों के लिए चुन ले। और तुम पर नेक फल लगने शुरू हो जाए। तुम एक ऐसा दरख्त बन जाओ जिन पर नेक फल लगने शुरू हो जाए, यानी नेकियां लगनियां शुरू हो जाए। तुम नेकी पे नेकी करते जाओ और तुम थको ही ना। हालेलुया। कभी फल देते देते दरख्त थकता है? नहीं थकता, बल्कि वो तो और मजबूत होता जाता है और खूबसूरत होता जाता है और बढ़ता जाता है। हालेलुया। तुम अपने चाल चलन और अपने रवैये को ठीक करो, और जब कभी इस बात का इल्म हो जाए, हाँ, तो इस तरह नहीं जिस तरह एली ने कहा चलो जी ठीक है जी खुदा दी जो मर्जी, नहीं धी चंगी होंदी ते ना होवे, नहीं पुत्र चंगा होंदा ते ना होवे, नहीं रोटी मिलदी ते ना मिले, नहीं कारोबार मिलता ते ना मिले, नहीं शोहर ठीक होता तो ना हो, घर बर्बाद होता है तो हो जाए, भाग में जाए, मिन्नत नहीं करेंगे, ऐसा मत कहिए। बल्कि अगर आप अपनों से या अपने घर से या अपने खानदान से या अपने मोहल्ले से या किसी से भी प्यार करते हैं तो दुआ और मिन्नत कीजिए। हालेलुया। जब आप मिन्नत करेंगे तो खुदा पहाड़ों को भी पिघला देगा। पहाड़ भी पिघलना शुरू हो जाएंगे जहां आप मसीह नाम लेंगे, क्योंकि यीशु नाम में ताकत है, यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में नजात है। हालेलुया। इसी बात को याद रखें कि हमें जमीन पर अपना चाल चलन दुरुस्त करना है। सो जब आपकी अच्छाई होगी, आखिरी बात, खुदा का कलाम इमसाल की किताब 16 बाब के अंदर लिखा है अगर तुम्हारी रफ्शें खुदा को पसंद आएंगी तो खुदा तुम्हारे दुश्मनों को भी तुम्हें दोस्त बना देगा। हालेलुया। अगर आपका चाल चलन खुदा को पसंद आएगा तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। और पहली बात, अगर खुदा ने फिर एली से बात की, शमूएल, तो बात क्या की ये तो मैंने आपको बताया नहीं। खुदा ने जो शमूएल से बात की थी वो यही थी कि वो तबाह होगा और उसके घर में कभी भी कोई बूढ़ा ना होने पाए। जो जमीन पर अपना चाल चलन, आप पढ़ सकते हैं 2 बाब की 29, 30 और 31 आया। इसके अंदर खुदा ने कहा है कि देख जो मेरे साथ मुत्तफिक होकर नहीं चलेगा और जो अपना रवैया ठीक नहीं करेगा उसके घर में कभी भी कोई बूढ़ा ना होने पाए। उनके तमाम जवान ही मकतूल उठाए जाएंगे। तो याद रखिए ये खुदा का वादा है। आज हमें अपने चाल चलन को ठीक करना है, जैसे कि खुदा ने एक मैसेज के अंदर बरकत दी है। क्या आप चाहते हैं कि आप बूढ़े हों? क्या आप चाहते हैं आप अपने बच्चों के बच्चे देखें? भाई कौन कौन चाहता है कि आप अपने बच्चों के बच्चे देखें? सब चाहते हैं, सब बूढ़ा होना चाहते हैं, सब छड़ी पकड़ना चाहते हैं, सब हिल हिल के चलना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन चलते फिरते रहिए मसीह। तो आए उस बरकत की आयात को तलावत करें जो मसीह में अपना अच्छा चाल चलन रखते हैं। कौन कौन है जो अपना अच्छा चाल चलन करना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर आप मसीह में बूढ़े होंगे, मसीह में चलेंगे। हालेलुया। एक आयत आखिरी होगी ज़बूर 92। बेटा निकालो ज़बूर 92, ज़बूर 92 और उसकी 12, 13 और 14। जी बेटा जरा पढ़ दीजिए, अगर नहीं तो मैं पढ़ देती हूँ। हालेलुया। सुनिए, पढ़े। सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद सरसब्ज होगा। पहली बात, जो चलेगा खुदा के साथ, जो अपना चाल चलन ठीक करेगा और जिंदा खुदा के सिवा किसी को नहीं मानेगा। हालेलुया। तो सुनिए,
उनके लिए क्या बरकत है, और जो नहीं मानेगा उनमें से कभी कोई बुरा ना होने पाएगा। ये खुदा ने एली से कहा। अब खुदा उन लोगों से जो मसीह में चलना चाहते हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग है, जरा सुनिए जी। सादक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्ज होगा। सादक खजूर के दरख्त की मानित सरसब्जा होंगे। वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। वो लुबनान के देवदार की तरह बढ़ेगा। जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं। जो खुदा के घर में लगाए गए हैं वो हमारे खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे। वो खुदा की बारगाहों में सरसब्ज होंगे बुढ़ापे में भी बड़ोमंद होंगे। और बुढ़ापे में भी बड़ोमंद होंगे। बड़ोमंद होंगे और तरोताजा रहेंगे। वो बुढ़ापे में भी जवानों जैसा जोर हासिल करेंगे, जवानों जैसे पहलवानों जैसा जोर हासिल करेंगे। जैसे ही वो बूढ़े होते जाएंगे वैसे वो जवान होते जाएंगे, मसीह में जवान होते जाएंगे। लिखा है कि सादक सच्चा इंसान खजूर के दरख्त की मानित होगा, सरसब्जा होगा और खुदा के घर में उन दरख्तों की तरह लगाए जाएंगे जो बढ़ते हैं, कम नहीं होते, जो बढ़ते हैं। और सादक क्या होंगे, खुदा के घर में लगाए जाएंगे और वो खुदा की बारगाहों पे होंगे और वो बुढ़ापे में बड़ोमंद, यानी बुढ़ापे में भी फल देने से बाज नहीं आएंगे। उनका जोर, उनकी ताकत, उनकी कुव्वत उनका खुदा होगा। हालेलुया। अब आप बूढ़े होना चाहते हैं मसीह में, बूढ़े होने का मतलब मसीह में जवान होना। हालेलुया। तो फिर हम तो होंगे भाई, हम तो होंगे भाई, अब मसीह में बूढ़े होंगे ताकि हम दुनिया में जवान रह सकें। हालेलुया। सो आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। और है तो बहुत सारा कलाम, लेकिन इसको फिर हम किसी दिन करेंगे, आगे लेके जाएंगे। लेकिन याद रखिए